Yesterday, when we were 3-4 of us together, we were sitting and discussing few things about the ministry or about God. कल हम लोग 3-4 लोग बैठ के ऐसे परमेश्वर की सेवा के बारे में या परमेश्वर के बारे में बात कर रहे थे Immediately, the Spirit of God took over our discussion. और तुरंत ही ऐसे परमेश्वर की आत्मा ने वो हमारा जो संभाषण था उसको ले लिया And then we were so deep in the presence of God. और उसके बाद हम परमेश्वर की उपस्थिति में इतना गहराई तक पहुंच चुके And थे today afternoon, we had another new experience by the Holy Spirit. और आज दोपहर को भी एक पवित्र आत्मा से एक नया ही अनुभव था हमारे That लिए was near about our God is a speaking God. हमारा खुदा जो है वो बात करने वाला खुदा He है likes to speak to us. उसको हमसे बात करने में अच्छा लगता है But many times we will be so much busy that we don't give an attention towards God and we will not be ready to hear by God. लेकिन कई बार हम लोग इतने व्यस्त होते हैं कि हम परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं But the ministry in this ecstasis ministry, we are taught by God to listen to God. लेकिन एक्सटासिस मिनिस्ट्री में परमेश्वर ने हमको सिखाया है कि उसको हम लोग सुने Hallelujah. हालेलुया In every of our gatherings और हमारे हर प्रार्थना सभा or में in every of our worship, या हमारे हर आराधना में God has trained us in a such a way we understand the move of God, and not only understand the move of God, our ears are trained to hear the voice of God. और हमको परमेश्वर ने ऐसे प्रशिक्षित किया है कि हम परमेश्वर का चलन हम लोग तुरंत समझ में आता है या तो उसका आवाज हमारे समझ में आ जाता है Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया From you. Hallelujah. हालेलुया So many times कई बार people have settled the church into according to their mind setup, not according to the mind setup of God. कई बार लोगों ने ऐसा अपने मन के हिसाब से चर्च का जो प्रार्थना सभा होता है उसको ऐसे टाइम टेबल बनाया होता है So they move according to their schedule and they ask God to move, that God should move according to their schedule. और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जो बनाए हुए टाइम टेबल है उस हिसाब से चले Little things God will do because of their faith. लेकिन उनके विश्वास के वजह से परमेश्वर कुछ ना कुछ चीजें करता है Something God will do because of their prayer. उनकी प्रार्थना की वजह से कुछ चीजें परमेश्वर करता है Something God will do because it is a church of God. वो परमेश्वर का चर्च है इसके लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ चीजें वहां करता है Hallelujah. हालेलुया If we want to see the great things of God, लेकिन अगर आपको परमेश्वर की महान चीजें देखनी है we should move according to the schedule of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के टाइम टेबल के हिसाब से चलना है आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया When we move according to the times of the Holy Spirit, अगर हम लोग पवित्र आत्मा के समय के द्वारा चलते हैं each and every gathering will be a blessing upon your life. और हर प्रार्थना सभा हर समुदाय आपके लिए एक आशीर्वाद ठहरेगा Hallelujah. हालेलुया Each and every time God will answer your question. और हर बार परमेश्वर आपके सवालों का जवाब You देगा will return from the presence of God with the blessings of God. और आप परमेश्वर के उपस्थिति से परमेश्वर के आशीर्वाद लेके चले जाओ He will not allow any wrong things to happen upon your life. और तुम्हारे जीवन पे कोई गलत चीज होने के लिए वो ऐसे होने नहीं देगा Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया As usual, every time when we come for the prayer, हर बार की तरह जब हम लोग प्रार्थना के लिए आते हैं Brother Srinivas is laughing from there. श्रीनिवास यहाँ से हंस रहा है Already I sent the message what I am going to speak today. कुछ आज जो मैं बात करने वाला हूँ उसका मैसेज संदेश मैंने उनको भेजा था But as we gathered and worshipped God, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे जमा हुए और परमेश्वर की आराधना की we are very clever to move in the timing of the Holy Spirit. और हम लोग पवित्र आत्मा के समय में हम चलने के लिए बहुत ही होशियार है Hallelujah. हालेलुया That is the reason और उसी कारण we से have a churches where there is no churches at all. और हमारे चर्च वहाँ पे है जहाँ पे कोई चर्च था ही नहीं Hallelujah. Hallelujah. Where people fear something will happen here, there God started to make his church to grow. और जहाँ पे लोग ऐसे डरते हैं कि यहाँ कुछ तो होगा वहाँ पे परमेश्वर ने अपना चर्च वहाँ पे बढ़ाया Hallelujah. हालेलुया That is because we have been trained by God, and we became very clever to understand
what God is speaking, what Holy Spirit is speaking to us. और ये उस कारण है क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमको प्रशिक्षित किया है और पवित्र आत्मा हमसे क्या बात कर रहा है वो परमेश्वर ने हमको दिखाया है। Hallelujah. हालेलुया। If I call on the testimonies, you may be having lot of testimonies today. अगर मैं साक्ष्य के लिए बुलाऊंगा तो आपके पास बहुत सारे साक्ष्य होंगी What God has shown, God has revealed to you. और जो भी परमेश्वर ने आपको दिखाया है। Hallelujah. हालेलुया। So before that, I want to speak few important things to you while we are worshiping. और उसके पहले मुझे कुछ महत्वपूर्ण चीजें मुझे आपको बतानी है जब हम लोग आराधना कर रहे थे तब। Hallelujah. Hallelujah. First time all our youth joined in the worship. और पहली बार हमारे सारे यूथ ने आराधना में उन्होंने भाग लिया। A big clap for the youths. उनके लिए तालियां बजाएंगे हम लोग। They are our new generation. वो हमारा नया पीढ़ी है। They are our upcoming church. वो आने वाला चर्च है हमारा। Hallelujah. हालेलुया। Once again, claps to all our हमारे सारे जवान बच्चों के लिए एक बार for फिर से all ताली our बजाएंगे। team. Hallelujah. हमारे सारे टीम के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। This is only a beginning. और ये सिर्फ शुरुआत है। Mumbai will see the great things of God. और मुंबई परमेश्वर की महान चीजें देखेगी। All the young youths will be moving in the anointing of the Holy Spirit. और सारे जवान लोग परमेश्वर के अभिषेक में चलेंगे। And every one of our children are going to be used for God. और हमारे सारे बच्चे परमेश्वर के लिए उपयोग किए जाएंगे। Every one of our children will be useful for the church of God. और हमारे सारे बच्चे परमेश्वर के चर्च के लिए उनको उपयोग किया जाएगा। All of their talent, all of their giftings, all of their Holy Spirit giftings will be used for the church of God. और उनके सारे पवित्र आत्मा की जो देनगी है वो परमेश्वर के चर्च के लिए Now उपयोग the की new जाएगी। season has come. और अभी नया दौर शुरुआत हो New season has come. नए दौर की शुरुआत That हो is a चुकी season of the Holy Spirit. है। और वो पवित्र आत्मा का दौर है। And that will happen. और वो जरूर होगा। As you all were worshipping, और जैसे आप सब लोग आराधना कर रहे थे। actually I don't want to enter in the worship as the children were leading the worship. और जैसे हमारे बच्चे आराधना कर रहे थे मुझे आराधना में आना नहीं था। So, but no, I was thinking just to come and encourage and go back. लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आके उनको प्रोत्साहन दे के वापस चला जाऊं। Hallelujah. हालेलुया। When I see the Holy Spirit is taking over the meeting, I cannot sit quiet. और जब मैं देखता हूँ कि पवित्र आत्मा प्रार्थना सभा को चला रहा है तो मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता। So personally, the Holy Spirit was speaking to so many people और today. तुम में से कई लोगों से पवित्र आत्मा एकदम वैयक्तिक तौर पे बात कर रहा था। Yes? यस। Hallelujah. हालेलुया। Let your yes be little louder. आपके हाँ थोड़ी बड़ी जोर से होने दो। Hallelujah. हालेलुया। So then, no, I started to speak to you what the Spirit of God was revealing about you, और उसके बाद regarding you. पवित्र परमेश्वर का आत्मा जो आपके बारे में प्रकट कर रहा था वो मैंने आपसे बात करना शुरू किया। While we all were moved, caught up by the presence of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के उपस्थिति में जब हम सब लोग ऐसे जुड़े हुए थे the Holy Spirit has given me a word regarding what is happening here in this ministry. और पवित्र आत्मा ने मुझे शब्द दिया इस मिनिस्ट्री में क्या यहाँ पे जो भी चीजें चल रही है उसके बारे में। That is Genesis chapter 8 verse 11. और वो है उत्पत्ति 8:11। Genesis chapter 8 verse 11. उत्पत्ति 8:11। संध्या के समय कबूतरी उसके पास लौट आई। उसकी चोंच में ताजा तोड़ी हुई जैतून की पत्ती थी। अतः नूर को मालूम हो गया कि पृथ्वी की सतह का जल घट गया है, पर उसने 7 दिन तक और प्रतीक्षा की। तत्पश्चात नूह ने कबूतरी को उड़ाया, किंतु वह उसके पास फिर लौटकर। While we all were worshipping, और जैसे हम सारे आराधना कर रहे I थे have seen the Spirit of God moving over this place. और मैंने देखा परमेश्वर का आत्मा इस जगह पे ऐसे ऊपर से चल रहा था। As the scripture we read now, और जैसे हमने अभी वचन पढ़ा in the same manner, और उसी तरह Holy Spirit was moving in this place. और पवित्र आत्मा इस जगह पे ऐसे घूम रहा था। That's what I have seen very clearly. और वही मैंने स्पष्ट रूप से The देखा। Spirit of God very cleanly showed me that. परमेश्वर के आत्मा ने मुझे स्पष्ट रूप से You वो दिखाया। all are under the covering of the Holy Spirit this evening. और हम सब इस पवित्र आत्मा के कवरिंग के अंडर है इस शाम को। You all are under the work of the Holy Spirit this evening. और तुम सारे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के काम के नीचे हो सारे। 8th chapter of Genesis, we see that Noah and his family has begun a new life. और 8वें अध्याय में उत्पत्ति के हम देखते हैं नोहा और उसके परिवार ने नया जीवन शुरुआत किया। Everybody say new life.
हर कोई बोलेगा नया जीवन, new life, नया जीवन, new life. नया जीवन। This evening, इस शाम the Lord has kept a new life for me. प्रभु ने मेरे लिए नया जीवन रखा The है। Lord has kept a new life for my family. परमेश्वर ने मेरे परिवार के लिए नया जीवन The रखा Lord है। has kept a new life by the Holy Spirit. प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन रखा है। Say, और कहो, the Lord has kept a new life for me. प्रभु ने मेरे लिए नया जीवन रखा है। In the 6th chapter of Genesis, we see like this. उत्पत्ति के छठे अध्याय में हम ऐसा देखते हैं, Only Noah and God. सिर्फ नोहा और खुदा। God spoke to Noah. परमेश्वर ने नोहा से बात Noah किया was ready to do obey God. और नोहा तैयार था परमेश्वर की That was आज्ञा पालन between करने के God लिए। and Noah. और वो नोहा और खुदा के बीच में था। 6th chapter, छठा अध्याय, only God and Noah. सिर्फ नोहा और It परमेश्वर। was a very difficult time for him नोहा के लिए एकदम कठिन समय to था। do all the things of God in the midst of the faithless people, अविश्वासीन लोगों के बीच में परमेश्वर के काम करने in के the लिए, midst of the evildoers, और सारे जो गलत काम करने वाले थे in उनके the बीच midst of में, the self-pleasers, और सारे जो खुद को खुश करने वाले लोग थे उनके in the बीच midst में, of the people who are enjoying their own life. और ऐसे लोग जहाँ पे जो अपने खुद के जीवन को एंजॉय In the कर रहे 6th थे, chapter, it was very difficult for Noah to do the things of God. और छठे अध्याय में नोहा को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत ही कठिन था। In the 6th chapter of Genesis, छठे अध्याय में जेनेसिस के, Noah became an helpless person और नोहा एक ऐसा असहाय व्यक्ति बन गया, because whole people were one side. क्योंकि सारे लोग एक साइड में थे, He and his family was one side. वो और उसका परिवार दूसरे बाजू में Hallelujah. था। Whole world was another side. पूरी दुनिया एक बाजू में थी, He alone was on God's side. लेकिन वो अकेला परमेश्वर के बाजू में था। Say to the Lord, परमेश्वर को कहो, whole world is one side. इस पूरी दुनिया एक बाजू में है I am on God's side. और मैं परमेश्वर के बाजू में हूँ। Say loudly. Let whole world be on one side. सारी दुनिया एक पक्ष में हो, I am on God's side. लेकिन मैं परमेश्वर के पक्ष में हूँ। When he was obeying God, जब वो परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहा था, obeying God is not easy. और परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ऐसा सीधा साधा नहीं, So obeying God, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के you will बाद see God doing the things for you. तुम देखोगे परमेश्वर तुम्हारे लिए चीजें करेगा। 6th chapter we see और छठे अध्याय में हम देखते हैं so many times कई बार he felt alone वो अकेला, खुद को to अकेला do, महसूस किया, to do what God has told him to do. और जो परमेश्वर ने उसको कहा वो करने के लिए, To prepare an ark for God. और परमेश्वर के लिए एक जहाज बनाने के लिए, To prepare his family to obey God. और उसके परिवार को तैयार करने के लिए, परमेश्वर को आज्ञा पालन करने के He is लिए, preparing an ark for God वो परमेश्वर के लिए जहाज बना रहा है, where all people are telling like this. जहाँ पे सारे लोग ऐसे उसको कह रहे हैं, Oh, he is preparing an ark in a wrong place. और वो कह रहे हैं कि ये जहाज बांध रहा है गलत जगह पे, Because the ark is built at the seashore. क्योंकि जो जहाज होता है वो समुद्र किनारे बांधा जाता है। But Noah was preparing an ark in the midst of the people. लेकिन जो नोहा था वो जहाज बना रहा था लोगों के बीच में, He is building the ark of God in the midst of the people who never believe in God. यानी वो ऐसा जहाज बना रहा है लोगों के बीच में जो लोगों ने परमेश्वर पे कभी विश्वास ही नहीं रखा। He is preparing an ark in the midst of the people who are always busy in doing only evil. जो लोग सिर्फ गलत काम करने में व्यस्त थे उनके बीच में परमेश्वर का जहाज वो बना रहा था। Genesis chapter 6 verse 5 says, जेनेसिस उत्पत्ति 6:5 कहता है, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य का दुराचार बढ़ गया है और उसने मन के सारे विचार निरंतर बुराई के लिए ही होते हैं। how many will say this evening, I want to obey God? और कितने लोग कहेंगे कि मैं परमेश्वर का आज्ञा पालन करूंगा इस शाम को। When you say to God that I want to obey you, जब तुम परमेश्वर को कहते हो कि मैं तुम्हारी इच्छा पे चलूंगा, or if you want to do something what God want to do by you, और आपके द्वारा परमेश्वर जो कुछ करना चाहता है वो तुम अगर करना चाहो, where he has done, where did Noah build his ark? और नोहा ने जहाज कहाँ बांधा? Where people didn't believe in God, जहाँ पे परमेश्वर पे लोगों का विश्वास ही नहीं where था, people were living in sinful life. जहाँ लोग सारे ऐसे पापी जीवन जी रहे थे, There he is building up the ark for God. वहां पे वो परमेश्वर का जहाज बांध रहा था। The people of God do the परमेश्वर के things लोग- in the midst of the impossibilities. जहाँ पे असंभवता, परमेश्वर के लोग जहाँ पे असंभवताएं होती है वहां पे परमेश्वर की काम करते हैं, There they will obey and do the things of God. और वहां पे वो आज्ञा पालन करके परमेश्वर का काम करते हैं। And he was building an ark in the place where there is no sea at all around him. और वो ऐसी जगह पे जहाज बांध रहा था जहाँ पे कोई समुद्र ही नहीं है उसके आजू बाजू में, Oh, faithless people around him. और सारे विश्वासहीन लोग उसके बाजू में थे, Faithless. विश्वासहीन। And all the
evil people around him. और सारे दुष्ट लोग वहां पे थे, But Noah built his ark there. लेकिन नोहा ने वहां पे जहाज बांधा। Everybody came and every day everybody is seeing Noah and telling like this. हर कोई आके हर दिन नोहा को देख के ऐसे बात करता था, You are wasting your time. तुम तुम्हारे समय को बर्बाद कर रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? You are building the ark क्योंकि तुम जहाज बांध रहे हो, in a wrong place. गलत जगह पे वो बांध रहे हो। If you build the ark, अगर तुम जहाज बांधोगे, how can you carry this ark to the sea? और ये जहाज को तुम समुद्र के पास कैसे लेके जाओगे? Noah said, और नोहा ने कहा, I know only one thing. मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, I want to obey my God. मेरे परमेश्वर की मैं आज्ञा पालन करूँ। Say to the Lord, परमेश्वर को कहो, I know only one thing. मैं सिर्फ एक चीज जानता I हूँ, know only one thing. मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ। Put your hand on your head and say like this. अपने सर पे हाथ रख के ऐसे कहिए, I know only one thing. मैं एक ही चीज जानता हूँ, I want to obey my God. मैं मेरे परमेश्वर की आज्ञा पालन करना I want चाहता to हूँ। obey my God. मेरे परमेश्वर की आज्ञा पालन I करना want to चाहता obey हूँ। my God. मेरे परमेश्वर की मैं आज्ञा Say पालन loudly, करना I चाहता have हूँ। only one thing to do. जोर से कहिए, मुझे एक ही चीज करनी है, I want to obey my God. मेरे परमेश्वर को I want to obey my God. मेरे परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है मुझे। Hallelujah. If you obey God, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा पालन करोगे, if you obey God, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा पालन what करोगे, happens? क्या होगा? Noah was building the ark where God told him to build the ark. और नोहा ऐसी जगह पे जहाज बांध रहा था, वो जहाँ पे परमेश्वर ने उसको बांधने कहा, The Lord said to build the ark in the midst of the people. और परमेश्वर ने कहा जहाज बांध दो लोगों के बीच में। All the people were telling like और this. सारे लोग ऐसा कह रहे We थे, know the ark which builds at the seashore. हम जानते हैं कि समुद्र किनारे जहाज बांधा जाता The है, ark which builds at the seashores is only for the journey or to fishing. और जो समुद्र किनारे जहाज बांधा जाता है वो मच्छी मारी के लिए या फिर प्रवास के लिए, सफर के लिए बांधा Hallelujah. जाता है। Noah's ark is not for fishing. और नोहा का जहाज जो था वो मच्छी मारी के लिए नहीं था, Noah's ark is for the new life. और नोहा का जो जहाज था वो नए जीवन के लिए था। Noah's ark is not to only make a journey. और नोहा का जो जहाज था वो सिर्फ सफर के लिए नहीं था, Noah's ark is not for the income. और नोहा का जो जहाज था वो ऐसे पैसे कमाने के लिए नहीं था, Ministry is not for the income. और जो सेवकाई होती है वो पैसा कमाने के लिए नहीं होती है, Ministry is to give the new life. और मिनिस्ट्री सेवकाई जो होती है वो नया जीवन देने के लिए होती है। Who all believe in new life, give a big clap to the Lord. और जो सारे नए जीवन This में विश्वास evening the रखते हो, Lord हाथ is तालियां telling बजाएं। something for you. और इस शाम परमेश्वर कुछ तो आपसे कह रहा है। All people said to Noah, what you are doing? और सारे लोग नोहा को आके कहे कि तुम क्या कर You रहे are हो, wasting your तुम time तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हो, and you are building the ark in a wrong और place. तुम तुम्हारा जहाज गलत जगह पे बांध रहे हो। When you are doing something to God, you will never be in a wrong place. You will be in the perfect place. और जब तुम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हो, तुम गलत जगह पे कभी हो ही नहीं सकते, तुम अच्छी जगह ही होंगे। When you are obeying God, you will never be in a wrong place. और जब तुम परमेश्वर का आज्ञा पालन करोगे, तुम गलत जगह पे कभी होगे When नहीं। you are obeying God, जब तुम परमेश्वर का आज्ञा पालन करोगे, wherever you are, जिधर भी तुम हो, though it is a barren ground, अउपजाऊ जमीन भी हो, there you will see the fruits in your life. वहां पे तुम फल देखोगे तुम्हारे जीवन में। God is preparing you for the new life. और परमेश्वर तुमको नए जीवन के लिए तैयार कर रहा है। God is preparing a new thing for your family. तुम्हारे परिवार के लिए नया नया चीज Say तैयार कर amen रहा to है। the Lord. Amen. If you believe, say amen to the Lord. अगर तुम विश्वास रखते हो तो Or आमेन say कहो। loudly, hallelujah to the Lord. हालेलुया। And the Lord is telling, और परमेश्वर कह रहा I है, am going to do the new things for you. मैं तुम्हारे लिए नई चीजें करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। When Noah was building the ark, और जब नोहा जहाज बांध रहा very था, cleanly it says like this. और बड़े स्पष्ट रूप से ऐसे कहा All his जाता है, 3 children joined him in this, the work of God. और उसके सारे 3 बच्चे परमेश्वर के काम में उसको जुड़ गए। His son's friends came to him and said like this. और उसके बच्चे के दोस्त आके उसको ऐसा कहना लगे, What funny thing you are doing here? और तुम क्या ये फनी चीज कर Your रहे हो? father always says, God, God, God. तुम्हारा And he started this work and you are joining this work. और तुम्हारा पिता हमेशा परमेश्वर 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 कहता रहता है, उसने एक जहाज बांधना शुरू किया तो तुमने भी And you तुम are भी उसमें doing in जुड़ a गए, wrong place. और तुम गलत जगह पे कर रहे हो। Bible says, और बाइबल कहता है God's time has come. परमेश्वर का समय आ चुका है, God's time has come. परमेश्वर का समय आ चुका The है। Lord said to Noah, परमेश्वर ने नोहा को कहा, get inside. अंदर आ जाओ, Get inside, you and your family. तुम और तुम्हारा परिवार अंदर आ जाओ। All of them entered inside. और वो सारे अंदर आ चुके थे। Chapter 7 verse 16 says, 7:16 कहता है, उत्पत्ति 7:16 क्या कहता है? समस्त प्राणियों के नर और मादा जलयान में गए, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। प्रभु ने नूह को
जलयान में भीतर बंद कर दिया। God shut the door. और परमेश्वर ने वो दरवाजा बंद कर दिया। When the complete obedience God saw in Noah, जब नोहा में पूरी तरह आज्ञा पालन देखा परमेश्वर ने, then God said like this, तब परमेश्वर ने ऐसे now कहा, is the time. और अब समय है, I am going to shut the door for you. और मैं तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करने जा रहा हूँ। Why did God shut the door for Noah? नोहा के लिए परमेश्वर ने क्यों दरवाजा बंद क्यों किया, Why did God took that step? और परमेश्वर ने वो चाल क्यों ली, Why did God made that decision? और परमेश्वर ने वो निर्णय क्यों लिया? Think that God is a watchman to be at the door? क्या तुमको लगता है कि परमेश्वर एक वॉचमैन है और दरवाजे पे खड़े रहने के लिए? Why God is interested with this door? और ये दरवाजे पे परमेश्वर की Why रुचि क्यों God थी? want to shut this door? परमेश्वर को ये दरवाजा क्यों बंद करना था? Chapter 6 verse 7 and 8 we read like this. 6, 7, 8 हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। Noah is a righteous man. नोहा एक He नीतिमान found the व्यक्ति था favor from God. और उसको परमेश्वर का Now- एहसान मिला, Now God's time has come for the judgment. और परमेश्वर का अभी न्याय का समय आया Now था। God want to finish all the people. अब परमेश्वर को सारे लोगों को Now खत्म करना Noah था। is a righteous man. अभी नोहा नीतिमान व्यक्ति था। What is the character of a righteous man? अभी नीतिमान व्यक्ति की क्या गुण The है? righteous never tolerate somebody suffering. और जो नीतिमान व्यक्ति होता है वो कोई भी ऐसे दुख में हो तो वो ऐसे सहन नहीं Now कर rain अब- came. अब ऐसे बारिश आई Wind is killing the people. और पूरी हवा लोगों को All ऐसे the people hit is कर रही थी। running towards the Noah's ark. और सारे लोग नोहा के जहाज की तरफ भाग रहे थे। Now they are crying and saying, oh, we need a help. अब वो रो के कह रहे थे हमें मदद की जरूरत है। Now he is a righteous man. अब वो नीतिमान व्यक्ति है। If anybody asks him for the help, अगर कोई उसको मदद के लिए मांगेगा immediately will open the door. वो तुरंत ही अपना दरवाजा खोल लेगा। Did you understand? आप समझ रहे हो? Some doors God will close in your life. कोई कुछ दरवाजे परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बंद कर देता है। Why you know? क्यों आप You जानते will हो? be a man of generosity. क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति बनोगे जो You may be a उदार दिल man का of हो kind. और तुम करुणा युक्त व्यक्ति होंगे। You will be a man of loving. तुम ऐसे प्रेमल व्यक्ति होंगे। You may be a man of righteousness. तुम नीतिमान व्यक्ति होंगे। God said like this, परमेश्वर ने ऐसे Noah, कहा, I told you, you obeyed me. अब नोहा मैंने तुमको कहा तुमने आज्ञा I पालन किया। gave them a time, enough time for them. मैंने उनको एक बहुत सा समय दिया, But they didn't give that time for me. लेकिन उन्होंने मुझे समय नहीं दिया Nor they didn't understand you. और वो तुम्हें भी समझ नहीं Now पाए। my time has come. अभी मेरा समय आ चुका You है। obeyed me. तुमने मेरा आज्ञा पालन And you किया are worthy for the new life. और तुम नए जीवन के लिए तुम वर्दी हो। You obey God. जब तुम परमेश्वर की आज्ञा पालन You करते are हो, worthy for the new life from God. परमेश्वर से नए जीवन के लिए तुम उचित हो This जाते evening the Lord is telling, हो। और इस शाम परमेश्वर who कह all रहा are present in this hall, है, इस हॉल में जो भी यहाँ पे who मौजूद all है, have experienced the presence of the Holy Spirit, जो भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अनुभव ले रहे if हैं, you are faithful in obeying me, अगर तुम विश्वास से मेरे आज्ञा पालन कर if रहे you हो, purposefully obey me, अगर तुम उद्देश्य से मुझे मेरे आज्ञा in पालन करोगे, all your impossibilities, if you are ready to obey me, अगर तुम्हारे सारे संभवताएं के साथ तुम असंभवताएं के साथ तुम मुझे आज्ञा पालन करने के लिए I तैयार am हो, preparing you for the new life. मैं तुम्हें नए जीवन के लिए तैयार कर रहा हूँ। Everybody say this evening, अब हर कोई इस शाम कहेगा, Lord, I will obey you. परमेश्वर मैं तुम्हारे आज्ञा पालन Lord, I will करूंगा। obey you. परमेश्वर मैं तुम्हारे आज्ञा पालन करूंगा। God never need a thousands, lakhs of disobedience people. और परमेश्वर को ऐसे आज्ञा पालन न करने वाले लाखों लोगों की, हजारों लोगों की जरूरत नहीं है। God need one obedient person. और परमेश्वर को एक आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। Where are they? और वो कहाँ है? Where are they? वो कहाँ है? Say loudly. जोर से कहिए, Here I am. यहाँ हूँ मैं खुदा। Lord, here I am. खुदा मैं यहाँ पे हूँ। Here I am. यहाँ पे हूँ। To obey you. तुम्हारे आज्ञा पालन In the करने के midst लिए। of every impossibilities. हर असंभवता के बीच में God is preparing a new ark in Mumbai. और मुंबई में परमेश्वर एक नया जहाज तैयार कर रहा है। That's what Peter says in his letter. और वही पेट पत्र में कहता है, Noah went and preached to every house. नोहा हर घर में वो जाके प्रचार करके He went to आया। every house and said like this. वो हर घर में जाके उसने ऐसे कहा, Oh, this is what God told me. अरे परमेश्वर ने मुझे ये कहा है The rain is going to come. और बारिश आने वाली I है am preparing the ark. और मैं जहाज तैयार कर रहा Please हूँ। join me. मुझसे आके जुड़ो। Join me in the obedience of God. परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में आके मुझसे जुड़ो। Join me in the plan of God. परमेश्वर की योजना में आके जुड़ो। Join me in the मुझसे। new life. नए जीवन में आके जुड़ Say जाओ। to the side person, आप बाजू के व्यक्ति को कहिए, join me in the obedience of God. परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में मुझसे Join जुड़ me in जाओ। the new life. नए जीवन में मुझसे जुड़ जाओ। Join me in the purpose of God. परमेश्वर के उद्देश्य में मुझसे जुड़ जाओ। Join me in the journey of God. परमेश्वर के सफर में मुझसे जुड़ जाओ। No, I don't know whether you are enjoying my message or not. I do not know, but I am enjoying. मेरा संदेश तुम मेरे संदेश का आनंद ले रहे हो कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो आनंद ले रहा हूँ। Why?
क्यों? It is the word of God. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, It is the word of God. ये परमेश्वर का वचन Say है। to the side person, तो बाजू वाले व्यक्ति while को saying कहिए, you are prophesying on him, और जब तुम कह रहे हो, तुम भविष्यवाणी दे रहे हो उसके or ऊपर, you are blessing that person. या उस व्यक्ति को तुम आशीर्वाद दे रहे हो, Come on, let us say once again. एक बार दोबारा Join कहेंगे, with me in the obedience in God. परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में मुझसे जुड़ Join me in the जाओ, purpose of God. परमेश्वर के उद्देश्य में मुझसे जुड़ Join me in जाओ, the plans of God. परमेश्वर की योजना में मुझसे Join जुड़ me in the जाओ, work of God. परमेश्वर के काम में मुझसे जुड़ जाओ, Church, join me in the work of God. चर्च में मुझसे जुड़ जाओ, परमेश्वर के काम में, Me in the new life. नए जीवन में मुझसे जुड़ जाओ, Join me in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में मुझसे जुड़ That's the जाओ। reason God has put you today in this hall. और उसी कारण से परमेश्वर तुमको इस हॉल में आज डाला है। Say, I will join the work of और God. कहो, मैं परमेश्वर के काम में जुड़ जाऊंगा, I will join the work of God. परमेश्वर के काम में जुड़ I will जाऊंगा, join in the obedience to परमेश्वर God. के आज्ञा पालन में मैं I जुड़ will join in जाऊंगा, the new life of और God. परमेश्वर के नए जीवन में मैं जुड़ We are जाऊंगा। building the ark for the kingdom of हम God. परमेश्वर के राज्य के लिए जहाज बांध रहे हैं, Everyone who obey in this ark, और obey the work of और God, हर कोई जो परमेश्वर के काम में आज्ञा पालन कर रहा है, they will see the marvelous things of God. वो देखेंगे परमेश्वर के महान। Whenever the Spirit of God stirs you up, जब भी परमेश्वर का आत्मा तुमको ऐसे हिलाता है, whenever you feel the new faith coming to your heart, जब भी तुम्हारे हृदय में ऐसे नया if विश्वास आता something is है, happening to your mind, some new thing you are listening, अगर तुम नई कोई चीज सुन रहे हो या तुम्हारे मन में कुछ हो रहा है, don't be quiet. ऐसे चुपचाप मत बैठो, Jump and rejoice. उड़ी मार के ऐसे आनंद मनाओ। How much you rejoice in godly things, जितना भी तुम परमेश्वर के काम, परमेश्वर की चीजों में आनंद मनाते हो, so soon you will see the godly things happening in your life. उतने जल्दी तुम तुम्हारे जीवन में देखोगे परमेश्वर के काम होते हुए। So in my upper room, in my house, the upper room is a prayer room. और मेरे घर में ऐसे ऊपर माड़ी और ऊपर का खोली है, ऐसे Before we प्रार्थना had का a खोली है। land, before we had a no this our studio and this all in past days, no, in old days, upper room is my prayer room. और जब ये स्टूडियो नहीं था, जगह नहीं थी चर्च की, तभी पहले ऊपर का घर जो था वो मेरा प्रार्थना का घर था। So this experience I didn't had in those days. और ये सारा अनुभव मुझे उन दिनों में नहीं So था। if I see even while reading, if I receive any new revelation, I'll put my Bible on my head and I'll start jumping like this, I'll be jumping like this. जब भी मुझे बाइबल पढ़ते हुए नया ऐसा प्रकटीकरण होता था, तो मैं सर पे मेरे बाइबल रख के ऐसे जंप करता था। Immediately my wife will run and say, "What you are doing? Stop! All mud is falling." और तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी आके कहती थी, तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, पूरी मिट्टी नीचे गिर रही है। Old house it is. ये पुराना घर है, If you jump, no, all the mud will fall down. और जैसे थोड़ा सा भी जंप करते तो पूरा मिट्टी नीचे आ जाता है। Faith people will put the mud upon the heads of the people. You know that? और जो विश्वासु लोग होते हैं, वो लोगों के सर पे ऐसे मिट्टी डालते हैं, आप जानते हो? जानता है क्या? Say yes or no. नो। No. That's why. If you say no, then I will answer. अगर आप ना कहोगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा। Faith people always put the mud on the head of the people who are sitting down. जो विश्वासु लोग हैं, वो हमेशा जो नीचे बैठे हुए लोग होते हैं, उनके सर पे मिट्टी डालते हैं। What does Luke chapter 5 says? ल्यूक 5 क्या कहता है? Luke chapter 5 says like this from verse 17 onwards. ल्यूक 5:17 से Jesus spent the time whole day in prayer. और 5:16 कहता है, पर यीशु ने पूरे दिन प्रार्थना में समय गुजारा। And then verse 17 says, उसके बाद 17 कहता है, the power of healing was present upon Jesus' body. और चंगाई की शक्ति परमेश्वर यीशु के शरीर के ऊपर उतर आई। And Jesus came to a Capernaum, to a village. और कफरनहूम में यीशु उस गांव में आया, All the people joined around of him. और वो सारे लोग उसके आजू बाजू ऐसे आ गए। The house was full. और वो जो पूरा घर ऐसा पूरा भरा हुआ था। 4 faith people, they came to attend the meeting of Jesus. विश्वासु लोगों के लिए वो यीशु की Four of them. चार विश्वासु लोग वहां पे आए यीशु की प्रार्थना सभा में। While they are coming to the prayer, they immediately said like this, वो प्रार्थना में आते हुए उन्होंने ऐसे कहा, we will carry our who is with the sickness. और जो ऐसे बीमार व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भी हम लेके जाएंगे। And they carried him and they came and they want to enter in from the door. और वो उठा के उसको ऐसे लेके आए, दरवाजे से उनको अंदर लेके जाना था, There was no place. लेकिन वहां पे जगह ही नहीं थी। What they have done? उन्होंने क्या किया फिर? They went on the roof and opened the roof. और वो ऐसे छत पे चले गए और उन्होंने छत ही खोल दिया। रूप ओपन करने टाइम माटी गिरता है क्या नहीं? गिरेगा क्या नहीं? What the Bible says, all people are seeing them, they are putting all the mud on them. सारे लोग देख रहे थे कि सारी मिट्टी उनके ऊपर गिर रही थी।
कोई भी कंप्लेंट नहीं दिया है. लेकिन किसी ने भी ऐसे तकरार नहीं की. Because when they saw their faith, they all were quiet. They said like this, if the mud is falling, no problem. Let us see what will happen to their faith. जब उन्होंने उनका विश्वास देखा तभी उन्होंने कहा कि मिट्टी भी गिर जाए तो कोई बात नहीं, उनका विश्वास जरूर देखेंगे. When you walk by faith, you will definitely put the mud on the faithless people. और जब तुम विश्वास में चलोगे तभी तुम विश्वासहीन लोगों के ऊपर जरूर मिट्टी डालोगे. I have put lot of mud on many people. और मैंने ऐसे कई लोगों पे ऐसे मिट्टी डाली है. Whenever I walked by faith, जब भी मैं विश्वास से चलता हूँ, I know that I am walking on the roof, but they are down. What I should do? और जब भी मैं ऐसे छत पे चल रहा हूँ, मैं जानता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ. It is not my fault. मेरा I प्रॉब्लम took नहीं a faith step. है. और मैंने विश्वास का I walked a faith walk. विश्वास का निर्णय लेके मैं I have done विश्वास a से faith चला. things. मैंने विश्वास की चीजें की. And the Bible says, और बाइबल कहती है those who experienced the mud on their head was all the religious people. और जो जिनके सर के ऊपर जो मिट्टी गिर गई वो सारे धार्मिक लोग थे. If you walk by faith, अगर तुम विश्वास से चलो you will definitely disturb somebody. और तुम जरूर किसी न किसी को ऐसे डिस्टर्ब करोगे. Even when Peter said, Lord, if you are our Lord, 14th chapter of Matthew chapter 14 verse 28, God, if you are Master, if you are our Lord, let me walk like you. मत्ती 24:28 कहता है, अगर प्रभु तुम मेरे प्रभु हो तो तुम्हारी तरह मुझे चलने दो. Bible says all 12 were there in the boat. और वो बाइबल कहती है कि सारे 12 शिष्य उस बोट में थे. Peter alone stood up and said like this, लेकिन पेत्र खुद ऐसा खड़ा होके उसने if कहा, you are my master, अगर तुम मेरे मालिक हो. faith people only will stand. और विश्वासु लोग ही ऐसे खड़े रहेंगे. All the people who didn't have a faith, they all said like this, Peter, why you want this all stupidity to do this all things? Sit properly, man, sit quietly, because we all are in the safe zone. Jesus is coming to us. Why you want to go there? Let us sit quietly. Our master is walking towards us. और जो सारे विश्वासीन लोग थे वो पेत्र से कह रहे थे, तुमको क्यों उठना है, हम कंफर्ट जोन में बैठे हुए, यीशु हमारे पास आ रहा है, तुमको उठने की जरूरत नहीं है. Peter said like this, लेकिन पेत्र ने ऐसे I कहा, cannot sit quiet. मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता. I want to stand in faith. मुझे विश्वास में खड़ा रहना. People will never sit quiet. They will always stand for God. और विश्वासु लोग ऐसे बैठे नहीं रहेंगे, वो हमेशा उठ के They खड़े always रहेंगे. want to do something like the master. उनको मालिक की तरह हमेशा कुछ ना कुछ तो करना होता They है. will not be safe zone. वो ऐसे सुरक्षित जोन पे नहीं रहेंगे. They will say like this, वो ऐसे कहेंगे, my master is coming, I will go to my और master. मेरा खुदा आ रहा है और मैं खुदा की तरफ जाऊंगी. My master is walking over the waves, I will walk over the waves. और मेरा मालिक ऐसे लाटों के ऊपर चल रहा है, मैं उस लहरों पे चलूंगा. My master is doing the new things, I want to do the new things. मेरा मालिक नई चीजें कर रहा है, मुझे भी नई चीजें करनी This है. evening God is talking only about the new things. और इस शाम परमेश्वर सिर्फ नई चीजों के बारे में बात कर God रहा wants है. to do the new thing upon you, church. परमेश्वर चर्च आपके ऊपर नई चीजें करना चाहता है. Whenever you stand for God, जब भी तुम परमेश्वर के लिए खड़े whenever you रहोगे, walk for God, जब भी तुम परमेश्वर के लिए whenever you चलोगे, obey God, जब भी परमेश्वर का आज्ञा whenever पालन you do करोगे, something for God, जब भी परमेश्वर के लिए कुछ ना the कुछ Lord तो is करोगे, telling, परमेश्वर कह रहा I है, will do the new things for मैं you. तुम्हारे लिए नई चीजें I will do करूंगा. the new things for you. मैं तुम्हारे लिए नई चीजें करूंगा. Chapter 8, verse 11 and 12, we have to meditate. चैप्टर 8, 11 और 12 हमको उसके ऊपर ध्यान लगाना है. That we only read. वो सिर्फ हमने पढ़ा. Still, I didn't give you the revelation of that. Why did God said that word? वो परमेश्वर ने वो वचन क्यों कहा, इसका प्रकटीकरण अभी तक मैंने Why आपको this नहीं word दिया is है. there for us this evening? और ये वचन आज इस शाम को हमारे लिए क्यों है, ये मैंने नहीं बताया अभी Why तक. Genesis chapter 8 verse 11 and 2 this evening for you? और उत्पत्ति 8, 11 और 12 आपके लिए क्यों है आज. God want to do the new things for you. परमेश्वर को नई चीजें करनी है तुम्हारे लिए. When Peter stood up, जब पेत्रस खड़ा रहा, 12 were there in the boat. 12 वहां पे उस बोट में थे, One stood by faith. और एक विश्वास से खड़ा रहा. One want to do something for Jesus. और यीशु के लिए एक को कुछ तो करना था, One want to imitate Jesus. और एक को यीशु का अनुकरण करना था. Do you want to imitate Jesus? आपको यीशु का अनुकरण करना है क्या? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Now when Peter stood up and he want to put the first step in the और जब पेत्र खड़ा रहा on the water. और पानी में उसको पहला कदम डालना था, When all saw Jesus, जब सारे लोगों ने यीशु को देखा, all were seeing Jesus only. और सारे यीशु को ही देख रहे थे. Oh, Master is coming. मालिक आ रहा है, Savior is coming. हमारा बच्चा We are बचाई safe करता आ रहा now. है. अभी हम लोग सुरक्षित है. And some said like this, no, ghost is coming. और कई लोगों ने ऐसे कहा, नहीं भूत आ रहा है. This safe zone people,
Spiritual things also for them it is a ghost. और ये जो सुरक्षित जोन में जो लोग हैं उनके लिए आत्मिक जो चीजें हैं, वो भी उनके लिए भूत की तरह होती है। Simply sitting people, चुपचाप बैठे हुए लोग spiritual things also they cannot enjoy. और जो आत्मिक चीजें होती है वो भी उसका भी वो आनंद नहीं ले सकते। When Peter stood up, जब पेत्र खड़ा रहा, everybody, please sit man, he is coming, sit down. हर किसी ने कहा वो आ रहा है, तुम बैठ जाओ यहाँ पे। And when he took the first step, लेकिन जब उसने पहला कदम लिया, all 11 they stopped seeing Jesus. सारे 11 यीशु की तरफ देखना उन्होंने बंद किया। Where they are seeing? अब वो कहाँ पे देख रहे हैं? What they are seeing? वो क्या देख रहे हैं? Petrus का shoes को देख रहे हैं. Feet, they are seeing the feet of Peter. पेत्र का वो पैर देख रहे हैं। They are sure अभी गिरेगा. और Now we will fall down. उनको लग अभी रहा था कि वो डूबेगा. अभी गिरेगा। Now we will put down. अभी वो गिर जाएगा। Anybody who want to imitate Jesus will never fail. और जो कोई यीशु का अनुकरण करेगा वो कभी भी नाकाम नहीं होगा। Anybody want to walk like Jesus will never fail. और कोई भी जो यीशु की तरह चलना चाहेगा वो कभी भी नाकाम Anybody want to go to Jesus will never fail. और जो कोई यीशु की तरफ जाना चाहेगा वो कभी भी नाकाम The नहीं Lord is होगा। telling, प्रभु कह रहा if है, you are walking towards me, अगर तुम मेरी तरफ चल रहे if you हो, are walking like me, अगर तुम मेरी तरह चल रहे if you हो, are coming near me, अगर तुम मेरे नजदीक आ I रहे will हो, never put you down. मैं तुमको कभी भी नीचे गिरने I नहीं will never दूंगा। put you मैं down. तुमको कभी भी नीचे Because गिरने you are नहीं seeing दूंगा। me. क्योंकि तुम मुझे देख You are रहे हो, following me. तुम मेरा अनुकरण कर You are रहे हो, imitating तुम me. मेरा अनुकरण कर I रहे will हो do the new thing for और you. मैं नई चीजें करूंगा तुम्हारे लिए। In whole the Bible, और पूरे बाइबल में only 2 water walkers are there. सिर्फ 2 पानी पे चलने वाले लोग हैं In whole Bible. पूरे बाइबल में। One is Jesus, एक यीशु next is Peter. और दूसरा पेत्र। When you walk by faith, जब तुम विश्वास से चलते हो you will be added into the new history. और तुम नए इतिहास में तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। 32 years, 32 साल always walked by faith. हमेशा विश्वास से मैं चला। Always I saw Jesus and walked. हमेशा मैंने यीशु को देखा और चला। Always what he said, yes Lord, I am ready to obey. और हमेशा मैंने कहा हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ तुम्हारे आज्ञा Let पालन it करने be के लिए। anything. वो कुछ भी होने दो, Oh, I am ready to obey you. मैं तुम्हारा आज्ञा पालन करने के लिए Today तैयार what हूँ। happened? आज क्या हुआ? New things the Lord is doing. और परमेश्वर नई This चीजें evening कर the रहा Lord है। is telling church, चर्च इस शाम We are- प्रभु कह रहा है we are the new people. हम नए लोग We हैं, are small people. हम छोटे लोग We are हैं, less group. हम छोटा समुदाय But है, we will see God and walk. लेकिन हम परमेश्वर को देखेंगे और चलेंगे। We will see Holy Spirit and walk. हम पवित्र आत्मा को देखेंगे We और will see चलेंगे। Jesus and walk. हम यीशु की तरफ देख के In चलेंगे। any condition, कोई भी परिस्थिति we are में ready to obey Jesus. हम यीशु की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है। When you obey God, जब तुम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हो, He knows to how to shut the doors. उसको मालूम है कब कैसे दरवाजे बंद करने हैं। If you know to shut the door, अगर उसको दरवाजे बंद करने आते हैं, He know to open the door उसको also. दरवाजे ओपन करने भी आते Hallelujah. हैं। Why did God close the door? वो परमेश्वर ने वो दरवाजा बंद क्यों Because किया? of the soft corner of Noah. क्योंकि नोहा के Soft पिघलता हुआ दिल जो था, He was a righteous man. वो नीतिमान व्यक्ति He था। was a favorable man. If somebody अच्छा runs व्यक्ति and था। says, Noah, please open, he will suddenly open. हर कोई अगर भाग के आता और कहता नोहा कृपा करके वो खोल दो तो वो खोल देता। That is the character of a righteous people. और वो नीतिमान व्यक्ति के गुण है। The Lord is telling, प्रभु कह रहा है you have opened door to many people, और तुमने ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं, but I have shut the door. लेकिन मैंने दरवाजा बंद किया Time है। is coming. और समय आ रहा है, Time is coming. ऐसा समय आ रहा है I will open a door for you. और मैं तुम्हारे लिए दरवाजे I will ऐसे open a खुले door करूंगा। for you. मैं तुम्हारे लिए If दरवाजा God खुला opens a करूंगा। door for you, अगर परमेश्वर तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता है, nobody can close it. कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता। If God closed the door, अगर परमेश्वर दरवाजा बंद करता है, nobody can open. कोई भी उसको खोल नहीं सकता। All the people came and screaming and saying, Noah, have mercy on us. और सारे लोग भाग के आके वो चिल्ला के कहा नोहा हमारे ऊपर कृपा करो। All the relatives came and said, Uncle, please open the door. और सारे ऐसे रिश्तेदार आके कहा कि अंकल दरवाजा कृपया करके ओपन करो। Noah said, लेकिन नोहा ने कहा I have not closed the door. मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, God has closed the door. परमेश्वर ने दरवाजा I बंद किया, cannot open. मैं अभी वो खुला नहीं कर Keys सकता। are with God. और उसकी चाबियां परमेश्वर के पास है, Keys are with God. परमेश्वर के पास उसकी चाबियां है। Everybody who made a fun of Noah, जिन जिन लोगों ने नोहा का ऐसे मजाक उड़ाया था, this is a Sunday school story, ये रविवार के स्कूल की स्टोरी है, a Bible story. लेकिन ये बाइबल की
Bible story will never be a old story. और बाइबल की कहानी कभी भी ऐसी पुरानी कहानी नहीं होगी, Every time it will be a new story. और हर समय ये नई नई कहानी When होगी। you are under the Holy Spirit, जब तुम पवित्र आत्मा के नीचे हो, when you are under the real anointing of God, जब तुम परमेश्वर के सच्चे अभिषेक के every नीचे हो, line of the Bible will give you the revelation. और बाइबल के हर एक वचन तुमको एक नया प्रकटीकरण देगा। Bible will never be bored to anybody who read the Bible under the right anointing of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सही अभिषेक के नीचे जो भी बाइबल पढ़ता है उसके लिए वो कभी भी ऐसे बोरिंग नहीं होगा। God is doing a new thing for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए नई चीजें कर रहा है। Continue in obeying God. परमेश्वर के आज्ञा पालन करने में आप Say to जुड़े the side रहो, person, और बाजू वाले व्यक्ति को continue कहो, to obey God. परमेश्वर की आज्ञा पालन Never करने में get जुड़ tired जाओ। in obeying God. परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में कभी भी ऐसे Never tired get मत tired in हो। obeying God. परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में कभी भी ऐसे Always थकावट मत obey करो। God. हमेशा परमेश्वर की आज्ञा All पालन the people came together. करो। और सारे लोग इकट्ठा Oh, आए, heavy rain. और वहां पे पूरी बारिश थी, Oh, water is increasing. और पानी बढ़ रहा था। These all the people who made a fun with Noah, they are telling like this. जिन्होंने नोआ का मजाक उड़ाया वो ऐसा कह रहे, 40 days back they said like this. 40 दिन पहले उन्होंने ऐसे कहा, Why you are preparing the ark here? तुम यहाँ पे जहाज क्यों बना रहे How हो? can you carry this और one? ये जहाज तुम कैसे लेके जा How you सकते can हो? move this one? इसको कैसे तुम हिला सकते हो? How this ark can rise up? और ये जहाज कैसे ऊंचा उठ सकता है? That same people, और वही लोग, they saw the heavy rain. उन्होंने देखा एक जोरदार बारिश, Every eye is not on the rain, every eye is on the ark. और हर जो आंख थी वो बारिश पे नहीं थी, लेकिन Every eye was looking to the ark. और हर आंख जो थी वो जहाज को देख रही थी। Noah is inside, और नोआ अंदर था, his family is inside. उसका परिवार अंदर था। Obedient people will always be inside the plan of God. और जो आज्ञा पालन करने व्यक्ति है वो हमेशा परमेश्वर की योजना में होंगे। Obedient people और जो आज्ञा पालन करते हैं वो always will be inside the plan of और God. परमेश्वर की योजना के अंदर ही रहेंगे हमेशा। You are an obedient person. आप आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति हो, You are inside the plan of God. और तुम परमेश्वर की योजना के अंदर हो। People may be telling, what new thing you are doing here? और लोग तुमको कह सकते हैं कि तुम क्या नई चीज यहाँ पे कर रहे हो। Noah was doing a new thing. और नोहा नई चीज कर रहा था। For all of them, it is a new thing. हर किसी के लिए वो एक नई चीज थी। For Noah, it is not a new thing, it is an obedience towards God. लेकिन नोहा के लिए वो नई चीज नहीं थी, ये परमेश्वर का आज्ञा पालन करना Though था। it is a new thing, he said like this, it is an obedience towards my God. और वो नई चीज जरूर थी, लेकिन उसने ऐसे कहा ये परमेश्वर के प्रति मेरा आज्ञा पालन है। Rain increased, और वो बारिश बढ़ गई, breeze increased, हवा बढ़ गई, water increased. पानी बढ़ गया, Ark started to shake. और वो जहाज ऐसे हिलने लगा। Everybody said, और हर किसी ने कहा, oh, Noah ark is moving. और हर किसी ने कहा कि नोहा का जो जहाज है वो हिल रहा है, Oh, it is floating. वो अभी ऐसे तैर रहा है, Oh, it is rising up. वो ऊंचा उठ रहा है। Obedient people will rise up. और जो आज्ञा पालन करने व्यक्ति है वो उठ जाएंगे। Obedient people, God will raise them up. और जो आज्ञा पालन करने व्यक्ति है परमेश्वर उनको ऊंचा उठाएगा। Hallelujah. When you are obeying God, जब तुम परमेश्वर का आज्ञा a पालन day is करते हो, coming. और ऐसे दिन आ रहे God हैं, will raise you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Oh, now the ark is moving. अभी जहाज ऐसे घूम रहा है। Everybody said, और हर किसी ने कहा, Noah, what happened to Noah? क्या हो गया नोहा के साथ, क्या He हो गया? didn't carry the ark to the sea. उसने इस जहाज को ऐसे समुद्र के पास वो लेके नहीं गया, God carried the sea to the ark. और परमेश्वर ने उस समुद्र को जहाज के पास लेके। Obey God. जब तुम परमेश्वर का आज्ञा पालन You करते no हो, need to carry the ark to the sea. और तुमको उस जहाज को समुद्र के पास लेके नहीं God जाना will है। bring the sea to your और ark. परमेश्वर समुद्र आपके जहाज के पास God लेके will bring आएगा। the sea to your family. परमेश्वर समुद्र आपके God knows परिवार to के पास rise लेके up the आएगा। obedient. परमेश्वर जानता है वो आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति को कैसे ऊंचा God knows उठाए। to carry the obedient people. और परमेश्वर जानता है वो जो भी आज्ञा पालन करता है उसको कैसे लेके चलता That is the 6th chapter story. और 6th ये- and 7th chapter story. है। 6ठे और 7वें अध्याय के बारे में ये कहानी है। 7th chapter. 7वां अध्याय, What does it say 7th chapter? और 7वां अध्याय क्या कहता है? How does the 7th chapter begins? 7वां अध्याय की शुरुआत कैसे होती है? God said to Noah, go inside. और परमेश्वर ने नोहा को कहा अंदर चले जाओ। Every obedient. हर कोई जो आज्ञा पालन करने Now वाला the time है, is coming. और अभी ऐसा समय आ रहा है, God is taking you inside. परमेश्वर तुमको अंदर लेके आ Inside रहा the safety. है, सुरक्षा के अंदर लेके आ रहा है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Many places people are preaching and telling like this, no, we are living in a dangerous days.
There is no safety for the people of God. I tell you, you have a safety in God alone. आमेन। हर कई जगह पे ऐसे प्रचार करके लोग कह रहे हैं कि हम सुरक्षित जीवन नहीं जी रहे, सुरक्षित जगह हमारे लिए नहीं है, लेकिन जब तुम परमेश्वर में होते हो वो सारा The सुरक्षित जगह only तुम्हारे लिए होता है। safety is in the ark of Noah. और जो सुरक्षा थी वो सिर्फ नोहा के जहाज में थी। The only safety is in the church of God. और आज की जो सुरक्षा है वो सिर्फ परमेश्वर के चर्च में है। Hallelujah. Hallelujah. You are in the church of God. तुम परमेश्वर के चर्च में हो, You are the child of तुम God. परमेश्वर के बच्चे हो, You are the faith walker. तुम विश्वास से चलने वाले You हो, are the obedient person. तुम आज्ञा पालन करने And व्यक्ति the Lord हो। is telling, और परमेश्वर कह रहा है, I will carry you to my destiny. और मैं तुम्हें मेरे डेस्टिनी पे लेके जाऊंगा। Now the ark is moving. और अभी जहाज ऐसे हिल रहा है। 40 days a new experience. 40 दिन नया अनुभव 40 days a family time. और 40 दिन परिवार का समय। While obeying God, no family time for Noah. और जब परमेश्वर का आज्ञा पालन कर रहा था नोहा, तभी उसके लिए परिवार के लिए समय नहीं था। Always going and bringing all the materials. और हमेशा जाके पूरा सामान ऐसे लेके आता Day था and night working. और दिन रात वो काम कर रहा था उस जहाज का। After finished the work, he went in search of all the animals. और वो, काम खत्म करने के बाद वो सारे प्राणियों को लाने गया। Wife is telling, at least one day you stay in the house, Baba. और उसकी पत्नी कह रही थी एक दिन तो घर पे रहो बाबा। Noah said, I don't have a time. लेकिन नोहा ने कहा I मेरे पास want समय to नहीं finish है, the work of God. मुझे परमेश्वर का काम खत्म करना है। 6 verse 22 says, 6:22 कहता है, Noah completely obeyed and finished the work of God. और नोहा ने पूरा आज्ञा पालन करके परमेश्वर का काम खत्म किया। The Lord said to Noah, और परमेश्वर ने नोहा को कहा, disobedient people are a judgment for the disobedient people. और जो आज्ञा पालन नहीं करते उनके लिए न्याय होगा। This is my judgment for them. ये मेरा न्याय है उनके लिए। For the obedient people, लेकिन जो आज्ञा पालन करते a हैं family time for 40 days. और उनके लिए 40 दिन का ऐसे परिवार का समय है। Noah and family had a good family time 40 days. और नोहा और उसके परिवार, वो परिवार के साथ With the उसका full अच्छा समय safety. रहा। वो पूरे सुरक्षा के साथ। But all for the world is a judgment. लेकिन सारी दुनिया के लिए वो न्याय था। If you obey God, अगर तुम परमेश्वर का आज्ञा पालन the करते Lord हो, is telling, परमेश्वर कह रहा है, I am bringing a peaceful family time for you. और मैं तुम्हारे लिए एक शांतिपूर्ण परिवार के साथ का समय लेके आया। I am bringing a joyful time for you. और तुम्हारे लिए मैं आनंद से भरा हुआ समय लेके आ रहा हूँ। Church, the Lord is telling, चर्च, परमेश्वर कह रहा है आपको, now is the time of God. अभी ये समय है परमेश्वर We का। are building the ark of God in this Mumbai. और इस मुंबई में हम लोग परमेश्वर का जहाज Come बांध on, रहे let us हैं। obey and work for the kingdom of और God. परमेश्वर के आज्ञा पालन करके उसके राज के लिए हम लोग काम करेंगे। Whatever the Lord says, जो भी परमेश्वर कह रहा let है, us join our hands. हमारे हाथ जोड़ेंगे Daily, let us work for the kingdom of और God. परमेश्वर के राज के लिए रोजाना काम करेंगे। A time is coming. और ऐसा समय आ रहा है God is going to bring a peaceful time for us. और परमेश्वर हमारे लिए ऐसे शांतिपूर्ण समय लेके time आने is वाला coming. है। और ऐसा समय आ रहा है, God will carry us. परमेश्वर हमको लेके चलेगा। To Noah want to know the timings of God. और नोहा को परमेश्वर के समय को जानना था। Noah want to know the timings of God. और नोहा को परमेश्वर के समय को जानना था। Want to check the climate. और उसको ऐसे वातावरण को Want चेक करना to check था। where we are. और उसको चेक करना था कि हम कहाँ पे हैं। So he tried. No, first he sent the crow. पहले उसने ऐसे कौवे को भेजा। 40 days it was in the safe zone. 40 दिन वो ऐसे सुरक्षित जगह पे था। He got the opportunity. और उसको मौका मिला। And Noah left him and want to find it out how was the climate. और नोहा ने उसको बाहर भेजा और जानना चाहता था कि बाहर का जो वेदर था वो कैसा है। He was flying and going and saw all the dead bodies. और वो ऐसे उड़ के हुए जाके उसने सारे मृत शरीर देखे। He said, 40 days no non-veg. Today I have a non-veg. उसने कहा 40 दिन नॉनवेज नहीं, लेकिन आज तो नॉनवेज मिलेगा। Noah was waiting. नोहा उसके लिए राह देख रहा था, वापस आएगा. वो दोबारा वापस आए I will get the message. और मुझे संदेश मिलेगा। Crow enjoyed all the non-veg. और कौवे ने जाके पूरा नॉनवेज खा लिया। Said, no need to go back. Only vegetarian I am getting inside. और उसको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वेजिटेरियन अंदर मिल रहा I है। got all the dead bodies. मुझे सारे ऐसे मृत शरीर Let मिल me गए। enjoy my life. और मेरा जीवन मुझे एंजॉय करने दो। Noah waited. He didn't return back. और नोहा ने राह देखा, लेकिन वो दोबारा वापस नहीं आया। Bible says बाइबल कहती है Noah took the second chance. और नोहा ने दूसरा मौका लिया। Second chance was a perfect chance. और दूसरा जो मौका था वो अच्छा परफेक्ट मौका He था। said, और उसने ऐसे now कहा, I will leave the door.
अब मैं कबूतर को भेजूंगा। Bible says, और बाइबल कहती the है dove went out, और कबूतर बाहर गया immediately returned back, और तुरंत वापस आया, could not stay anywhere. वो किधर भी रुक नहीं पाया। The Bible says, और बाइबल कहता है Noah took it and waited for 7 more days. और नोहा ने उसको अंदर लिया और वापस 7 दिन उसने राह Then देखा again sent. और उसने 7वें दिन के बाद दोबारा This भेजा time. और इस बार Chapter 8, 11 and 12. संध्या के समय कबूतरी उसके पास लौट आई। Okay, enough. Evening, the dove returned back. और संध्या के समय वो कबूतर वापस Meditating on the 11th verse, chapter 8, verse 1. 11वें वचन पे चिंतन करने के पहले 8, verse 1. परमेश्वर ने नूह एवं उन समस्त वन पशुओं और पालतू पशुओं की सुध ली। What is it? Remembered. God remembered Noah and all the animals inside the ark. और जहाज में सारे जो प्राणी थे और नोहा इनके बारे में परमेश्वर ने याद God always remembers the obedient people. और आज्ञा पालन करने व्यक्ति को परमेश्वर हमेशा याद रखता है। He will never forget the obeying people. और जो आज्ञा पालन करते हैं उस व्यक्ति को कभी भी He भूल will नहीं never सकता। forget the hardworking people. और वो कठिन परिश्रम करने वाले लोगों He को will कभी भी never भूल नहीं forget the सकता। faith people. और विश्वासु लोगों को भूल नहीं सकता। People are here. विश्वास लोग यहाँ पे है, God will never forget you. आपको कभी भी परमेश्वर नहीं Obedient भूलेगा। people are here. आज्ञा पालन करने God will करने remember वाले you. व्यक्ति, परमेश्वर आपको याद रख। Whatever you have done for God, He will remember you. जो भी आपने परमेश्वर के लिए किया है परमेश्वर उसका He's a परमेश्वर याद God रखेगा। of remembering. और वो परमेश्वर है वो जो याद He रखता will है। remember your good work. तुम्हारे अच्छे काम को याद He will रखेगा। remember your faith work. तुम्हारे विश्वासु काम को याद He will रखेगा। remember all your holy work. तुम्हारे पवित्र कामों को याद Whatever रखेगा। you do for God, He remembers you. और जो भी तुम परमेश्वर के लिए करते हो वो याद रखता This evening, है। the Lord is telling, इस शाम परमेश्वर कह रहा I है remember you, my son and my daughter. मेरे बेटे मेरे बेटी मैं तुमको याद रखता Oh, हूँ। to obey my word, how much you went through hardships in your life. मेरे वचन का पालन करने के लिए तुम्हारे जीवन से कितना कठिन परिश्रम से To गुजरे। follow me, you have done so many sacrifices in life. मेरे पीछे आने के लिए तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे, So many times you have been बलिदान दिए। insulted. कई बार तुम्हारा अपमान किया गया। To somebody, the Lord is telling, और किसी को तो परमेश्वर आज कह रहा है for God's sake, many times you were insulted. और परमेश्वर के लिए कई बार तुम्हारा अपमान किया गया। Many times you were put aside. तुमको कई बार ऐसे बाजू में रखा गया Many times you underwent the criticism. और कई बार तुम्हारी निंदा की गई। But this evening the Lord is telling, लेकिन इस शाम परमेश्वर कह रहा है I remember you. मैं तुमको याद रखता हूँ I remember your good work. और तुम्हारे अच्छे कामों की मैं याद रखता I हूँ। remembered your prayers. तुम्हारे सारे प्रार्थनाओं को मैं याद करता I हूँ। remember your offerings. तुम्हारे सारे जो देनगियां थी उनको मैं याद I रखता हूँ। remember whatever you have done for me. तुमने जो भी मेरे लिए किया वो The सारा Lord मैं is याद telling रखता this हूँ। evening. परमेश्वर इस शाम को कह Holy रहा Spirit है। is telling this पवित्र evening. आत्मा इस शाम को कह रहा Jesus है। is telling this evening. यीशु इस शाम को कह The रहा God है। whom you love is telling this evening. जिस खुदा पे तुम प्यार करते हो वो कह रहा है इस The शाम God को। whom you believe is telling this evening. जिस खुदा पे तुम विश्वास रखते हो खुदा तुमको इस शाम कह रहा है I remember you well. मैं तुमको याद रखता हूँ अच्छी तरह। What a great God we have. कितना महान खुदा है हमारा। He will never forget वो us. हमको कभी भी भूल नहीं पाएगा। Amen. Amen. In only on the remembrance we can speak 1 more hour. और ये याद रखने पे ही हम लोग 1 घंटा और बात कर सकते हैं। Obey God. परमेश्वर की आज्ञा पालन करो। Though it is difficult, वो जरूर कठिन है obey God. लेकिन परमेश्वर की आज्ञा He पालन will करो remember you every moment. और वो हमेशा तुमको याद रखेगा। Many times I heard testimonies or I heard some words from the people like this, you know. और कई लोगों से मैंने ऐसे शब्द सुने कई बार, Lord, Pastor, so much I am praying, Pastor. पास्टर कितना मैं प्रार्थना कर रहा I हूँ, am fasting and praying, Pastor. मैं उपवास करके प्रार्थना कर रहा हूँ Why did पास्टर, God didn't remember my good deeds? लेकिन मेरे अच्छे कामों को परमेश्वर क्यों नहीं याद रखता? He will never forget. वो कभी भी भूलेगा He नहीं will remember your good work. और तुम्हारे अच्छे कामों को हमेशा याद रखेगा। Are you doing the good things for God? क्या तुम परमेश्वर के लिए अच्छी चीजें कर रहे हो? Yes. यस। Now the time has come. और अभी समय आ चुका He will है remember you every day. और वो हर दिन आपको याद रखेगा। He will say like this. और वो तुम ऐसा कहोगे। Oh, the Lord is telling to himself like this. परमेश्वर अपने आप से ऐसे कह रहा Oh, है। this Noah, और ये when नोहा all were failed, जब सारे लोग नाकाम when हुए all थे, were doing evil, सारे लोग दुष्ट कर when रहे all थे, were disobedient, और सारे लोग ऐसे आज्ञा पालन नहीं He कर रहे obeyed थे, me. उसने मेरा आज्ञा पालन I want to किया remember him. और उसको मुझे याद रखना है। This evening the Lord is telling, और इस शाम परमेश्वर तुमसे कह I रहा will है remember you. मैं तुमको याद रखूंगा। Hallelujah. Verse 11 says, और 11वां वचन कहता है the dove returned back.
और वो कबूतर दोबारा वापस आया Second time he returned back like this और दूसरी बार वो ऐसे ऐसे वापस आया with the fresh leaf. With the fresh leaf. ताजा पत्ता लेके वापस आया Green leaf. और वो हरा ऐसा पत्ता लेके आया। Holy Spirit comes. जब पवित्र आत्मा आता है, When the Holy Spirit जब comes, पवित्र आत्मा आता है, here the dove speaks about the work of the Holy Spirit. और जो कबूतर है पवित्र आत्मा के काम के बारे में बात करता Crow है, speaks the work of the devil. और जो कौवा है वो शैतान के काम के बारे में बात करता है। Disobedient. वो आज्ञा पालन नहीं था Want to enjoy only the food. और उसको सिर्फ जाके ऐसे खाना था। He was waiting. The crow was waiting. When he will leave me. और कौवा राह देख रहा था कि नोआ कब उसको छोड़ेगा, But dove said, लेकिन कबूतर ने कहा I will return back to my master. और मैं मेरे मालिक के पास दोबारा जाऊंगा। The Lord is telling today, और परमेश्वर आज कह रहा है oh, to all the obeying people, और सारे जो आज्ञा पालन करने लोग हैं उनके लिए the Lord is telling, परमेश्वर कह रहा है my spirit will work for you. और मेरा आत्मा तुम्हारे लिए काम करेगा, My Holy Spirit will work for you. मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए काम My करेगा, Holy Spirit will work for you. मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए काम How will be करेगा। the work of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का काम कैसे होगा? Freshly work. और वो एकदम ताजा काम होगा। Amen. आमीन। New work. नया काम होगा Greenly work. और वो एकदम हरा भरा काम होगा। Amen. Lord is telling, और परमेश्वर कह रहा each and है every day, हर दिन each and every gathering, हर समुदाय में in this church, इस चर्च the में Lord is telling, परमेश्वर कह रहा है my spirit will do the new works. मेरा आत्मा नए काम करेगा। Continue to obey और God. परमेश्वर की आज्ञा पालन करना शुरू Continue to obey God. जारी रखिए परमेश्वर की आज्ञा New पालन things करना। are coming for you. नई चीजें आ रही है The तुम्हारे new लिए things have begun today. और नई चीजों का शुरुआत आज हो In चुका the है। presence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की उपस्थिति In the में presence of the anointing of God. परमेश्वर के अभिषेक में The new things of the Holy Spirit has begun for you. पवित्र आत्मा की नई चीजें तुम में शुरुआत हो चुकी है You will see the new things of God. और तुम परमेश्वर के नई चीजें देखोगे You will see the fresh things of और God. तुम देखोगे परमेश्वर की ताजी चीजें। The word of God says like this. परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, Chapter 8 verse 12 says, 8:12 कहता है, Noah waited 7 more days. और नोहा ने और 7 दिन राह देखा। After experiencing the work of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का काम का अनुभव लेने के बाद, after experiencing the new things, नई चीजों का अनुभव लेने के बाद he waited on God. वो परमेश्वर के प्रति उसने राह देखी The Lord is telling, और परमेश्वर कह रहा you है have received the anointing of the Holy Spirit. तुमको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, Wait few more days. कुछ दिन रुको Wait few more days. और कुछ दिन रुको। The Lord is telling, परमेश्वर कह रहा the है work of the Holy Spirit has begun upon you. पवित्र आत्मा का काम तुम्हारे ऊपर चालू हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Obedient people are here. आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति यहाँ Faith पे people है, are here. विश्वासु लोग क्या यहाँ पे है, Hard working people are here. परिश्रम करने वाले लोग यहाँ पे है, Visionaries are here. विजन देखने वाले लोग यहाँ पे है, Anointed are here. अभिषेकित लोग यहाँ पे है। Hallelujah. To our God. हमारे परमेश्वर को कहेंगे, Lord, here I am. मैं यहाँ पे हूँ I am परमेश्वर, ready, Lord. मैं तैयार हूँ Say, प्रभु, everybody say, Lord, I am ready. मैं तैयार हूँ प्रभु। Everybody say, Holy Spirit, I am ready. हर कोई कहेगा पवित्र आत्मा मैं तैयार हूँ। I believe in the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के काम में मैं विश्वास My रखता हूँ। family will see the work of the Holy Spirit. मेरा परिवार पवित्र आत्मा का काम देखेगा। My children will experience the work of the Holy मेरे Spirit. बच्चे पवित्र आत्मा का काम का अनुभव लेंगे। जोर से, जोर से कहो, और जोर से, और जोर से कहो, little louder, जोर से कहो, say loudly, और जोर से कहो, I will see the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का काम मैं देखूंगा। My God has promised me, मेरे परमेश्वर ने मुझे I will अभिवचन see the दिया work है। of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा का My काम family will देखूंगा। see the work of the Holy मेरा Spirit. परिवार पवित्र My आत्मा का children काम will see the देखेगा। work of the Holy मेरे बच्चे Spirit. पवित्र आत्मा का काम I am देखेंगे। safe in the hands of God. मैं परमेश्वर के हाथ में I सुरक्षित will हूँ। obey my मैं God. परमेश्वर का आज्ञा पालन I will करूंगा। obey my God. मेरे खुदा का I मैं will आज्ञा obey पालन my करूंगा। God. मेरे खुदा का मैं आज्ञा पालन My करूंगा God will move me. और मेरा खुदा मुझे चलाएगा।